Welcome friends again. Let's go for next problem. Here you may get problem number 5. Actually I prepared for two more problems, but I think that it is better to take them last, today or tomorrow. They are about the infinite combination of the capacitors, so that we will study at last. So easy to difficult we will go. So now this problem, calculate the equivalent capacitance between the points A and B in the combination shown. So I'll go somewhat fast because already I have taught you this. In this combination C, there are 1, 2, 3 and 4 capacitors, and these connections are there. So consider at first this part. I have told you na, A is connected to this also, and this also. So this all three are parallel with each other. They are parallel with each other. So first I have to draw the equivalent circuit. One, two, three. 1, 2, 3. This will be A, and this 4 will be in series with that. Now it's very easy, na? You can do that now. What you can do? This is 5. So 5, 10, 15. 5, 10, 15. The 3 are in parallel. So 5 plus 10, 15 plus 15, 30. So it will become 5 plus 10 plus 15. So it will be 30 microfarad, and this will be 30 microfarad. Now this 30 microfarad, this 30 microfarad, they are in series. So the equivalent capacitance will be 13 by 2, that is equal to 15 microfarad. So the thing to keep in mind is that whenever like this combination is there, as I told you prior, you have to keep in mind they all will be in parallel, but this should be 3. If it is 3 and like this they are connected, then you can use the trick. Directly you can take them to be in parallel. Let's go for the next problem. Okay. The same problem here, only the thing is changing here. Here 1, 2, 3, and here 1 and here 1. So what to do for that? So first let me teach you how to get the idea. I think some resolution must be increased, na? Oh, okay, now it's okay. Now here see, A is going to number 1 this 2 capacitor is going, okay. Then here you don't see B, up to this only you see. This point is going for 1 and 2, this one and this one. This point is common and this point is common. So shall I consider this to be as a Wheatstone's network? Whether it is balanced not, afterwards we'll see. So I may consider A, then like this I can draw. This is 5 microfarad, this is 5 microfarad, this 5 and this 5. Are you getting my point? And this 5. And in between I'll consider this point to be X and Y. So this will be my X, this will be my Y. In between X and Y, how much it is there? 10 microfarad is there. And this point, which is my here, is connected to 5 microfarad, and this is B. Keenly observe that. Now you are knowing what? C1 upon C2 is equal to C3 upon C4. If the ratio is same,
here it is there, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, same. Then what you will do, you are knowing that, yes correct. देखो बेटा, आपने जो उधर से बोला मुझे सुनाई दिया, इसको निगलेक्ट करेंगे. इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा 5 5. फटाफट करता हूँ अभी. 5 5, ये 5 5 सीरीज, ये 5 5 सीरीज उनका पैरेलल, और ये 5, सब 5 5 5 5. तो ये 5 5 का सीरीज कितना होगा, 5/2. ये 5 5 का सीरीज 5/2. और बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, ये सी 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 होता है तो ये भी सी ही आता है. तो 5/2 5/2 उनका पैरेलल, फिर से 5 आएगा, और 5 और 5 उसका आएगा 5/2. उसका मतलब कितना, हाउ मच इट इज़, 2.5 माइक्रोफैरड. इफ़ यू वांट टू learn it again, you may pause the video, and as a revision you may look in that. I will go for the problem number 7. Sorry for the disturbance from my child. Ananya, she is irritating a lot. Sometimes she is making a lot of noise. Okay, how much work must be done to charge a 24 microfarad capacitor when potential difference between the plates is 500 volt? Answer is 3 joule. Work they are asking. You are knowing that V is equal to W upon Q. So W will be equal to VQ. But now here, instead of using this formula, I have a direct formula for potential energy. U is equal to half CV square, or U is equal to half QV, or U is equal to Q square upon 2C. Are you getting my point? Okay. Now here capacitance C is given and potential difference is is given. So we'll directly use half CV square. So W will be equal to U is equal to half CV square, number okay, half into, this is 24 into 10 raised to minus 6 into V का स्क्वायर, मतलब 500 into 500, ये बन गया 12. 5 5 है 25, 25 into 12 and 1 2 3 4, ये minus 6 और वो 10 raised to 4. इनका कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा, 10 raised to -2. 25 2 50, 25 25 plus 5 30, और ये 2 और ये -2, ये चला जाएगा और आपको मिलेगा आंसर 3 joule. That's very easy. Okay, let's go for the next problem. Actually today I may give you some less videos because evening there was a lightning, also there was a rainfall with some cyclone also, so my internet connection was not properly working, my PC was not working because of no electricity. Late night I am doing this all work, so today please adjust. I may have a 2 or 3 video only, max to max 3, not 4th video. It's okay. A capacitor of capacitance 50 microfarad is charged to a potential of 1000 volt. Calculate the energy stored in the capacitor. This is as a homework. Capacitance is given, voltage is given, you have to find the energy stored. Answer is 25 joule. बेटा I am giving you this as a practice. ये easy है, ये मेरे को आता है, ये होता है, ये होता है, वो हो जाता है, नो प्रॉब्लम, आएगा, ऐसा मत करो. जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सॉल्व करते जाओ. जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा. अब ये देखते हैं, ये थोड़ा लिख के लो आप, पॉज करके. 2 capacitors of capacities 5 microfarad and 10 microfarad are charged to 16 volt and 13 volt. What is the common potential when they are connected in parallel? 5 माइक्रोफेरेड का है, वो 16 वोल्ट तक चार्ज किया है. 10 माइक्रोफेरेड को 13 वोल्ट तक चार्ज किया है. मतलब 16 वोल्ट 5 माइक्रोफेरेड को दिया, 13 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड को दिया. ऐसा करके उनमें चार्ज भर लिया. अभी उन दोनों को हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया.
तो उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दैट। ओके, पहले वाला 5 माइक्रोफेरेड, तो मैं लेता हूँ 5 माइक्रोफेरेड। उसको कितना पोटेंशियल अप्लाई करने का है, इधर बाकी बैटरी वगैरह नहीं दिखा था, एक पोटेंशियल का वैल्यू दिखा था मैंने, 16 वोल्ट दिया, ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड। और दूसरे वाले को कितना दिया वोल्टेज, 13 वोल्ट, ये हो गया 10 माइक्रोफेरेड। सो इस पर चार्ज कितना होगा बेटा, करेक्ट। अभी मेरे को फिर से अभी आपने जो बोला मेरे कान में गूंज उठी, हाँ, क्यू सी वी, क्यू सी वी, पहले को बोलता हूँ Q1, दूसरे को बोलता हूँ Q2। इसके ऊपर कितना आएगा 5, 16 एंड 5 80 आएगा, 80 माइक्रो कूलम। इस पर कितना आएगा 13 10 130 माइक्रो कूलम। इधर तक समझ गए आपको, ये दोनों को सेपरेट चार्ज किया। अभी ये हटा दिया तो भी इसके ऊपर चार्ज दैट विल बी रिमेनिंग देयर ओनली। इन दोनों को अभी मैंने इकट्ठा किया पैरेलल में, इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, ये 1 और ये 2। अभी ठीक है, पैरेलल में क्या होता है V कांस्टेंट और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अपने को Q1 मालूम है, Q2 मालूम है। Q1 कितना है 80 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 130 माइक्रोकूलम। तो इसका टोटल Q कितना हो जाएगा 80 प्लस 130 210 माइक्रोकूलम, ये हुआ Q। V अपने को निकालना है। C इक्विवेलेंट कितना आएगा 5 और 10 का पैरेलल, मतलब 5 प्लस 10, सो इट इज 15 माइक्रो फैरेड। तो अभी V कितना आएगा, Q इज इक्वल टू सी वी ना, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। 210 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻6, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, it is coming, yeah, it is coming 14. That's all. Let's go for next problem. ये आपको जरूर आना चाहिए। 0.2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 600 वोल्ट। उसके बाद क्या किया, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, मतलब ये चार्ज किया उसको, ये इतना वोल्टेज देके, ये चार्ज होने के बाद बैटरी निकाल दिया, डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। सेम, कुछ भी फर्क नहीं, फटाफट सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, मतलब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। फटाफट करते हैं। पहले उसको चार्ज किया, C कितना है 0.2 माइक्रोफेरेड, V कितना है 600 वोल्ट, तो Q कितना आएगा C इंटू V, दैट इज 0.2 इंटू 600, 600 टू ज़ा 1200, और ये पॉइंट इधर आएगा, और ये माइक्रो है तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा। और ये 0.2 को पैरेलल में कनेक्ट किया किसे 1 माइक्रोफेरेड, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना होगा 1 प्लस 0.2, दैट इज 1.2 माइक्रोफेरेड। ये बन गया C इक्विवेलेंट। Q तो मिल गया अपने को, किसका, इसका Q मिल गया। ओके, नाउ we have to see इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, ये होने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, न्यू पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल कितना था 600 था, जब ये 0.2 था, तब उसके ऊपर चार्ज कितना था Q। तो बेटा यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम क्यों लिया है, यहाँ पे तो आपको इसके ऊपर का चार्ज दिया नहीं है। देन बेटा यू हैव टू लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो जैसे एक सोचो एक पानी का टंकी है,
अभी इधर दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे देखो, एक पानी का टंकी 500 लीटर का है, और दूसरा पानी का टंकी है, वो है 5000 लीटर का, कैपेसिटी बोल रहा हूँ। तो इसका कुल मिला के पानी कितना, 5500। अभी ये 5500 जितना है 5500, इसको मैं कैसे भी कर सकता हूँ, इधर 2500 का टंकी लगा सकता हूँ, इधर 3000 का लगा सकता हूँ, टोटल मिला के 5000 5500 500 ये वही रहेगा ना, दैट विल बी सेम। वैसे ही जो मैंने चार्ज लिया है ना कैपेसिटर में, दूसरा तो एम्प्टी है, जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल रहेगा इसके बीच में, उसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है Q मैंने जो निकाला है, इसको लेने का टोटल चार्ज, और अभी Q इज इक्वल टू सी V तो कांस्टेंट रखा है मैंने, तो Q विल बी प्रोपोर्शनल टू C, मतलब जिसका जितना कैपेसिटेंस उतना उसके ऊपर चार्ज, जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज, कम कैपेसिटेंस उसके ऊपर कम चार्ज। तो ये कैसे करेंगे, अभी अपना टोटल चार्ज कितना निकाला है हमने, 120 माइक्रोकूलम। इसको अभी कैसे करना है, ये तो है 0.2 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड, तो 0.2 और 1 का रेशो लिया तो डायरेक्टली करने का 0.2x प्लस 1x इज इक्वल टू 120, ये हो गया 1.2x इज इक्वल टू 120, x विल बी 120 अपॉन 1.2 दैट इज 1200 अपॉन 12 100, सो x बिकम 100। तो अभी इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 100 इंटू 0.2, ये आएगा 20 माइक्रो कूलम, और इसके ऊपर कितना आएगा अपना 1 वाला जो है ना 1, इसके ऊपर आएगा 100 माइक्रोकूलम, तो हो गया। तो इसके ऊपर आया 20 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर आया 100 माइक्रोकूलम। अभी पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी ना, तो ये पोटेंशियल निकालने की किसी एक का ले लो, C ले लो, उसका चार्ज ले लो, इसका चार्ज कितना है, अभी अभी हुआ 20 माइक्रोकूलम, और उसका कैपेसिटेंस कितना है 0.2, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, इट इज़ 20 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.2 इंटू 10⁻6, so of course 200 upon 2 that will be 100 वोल्ट। ये पूरा आपको समझा दिया है, शॉर्ट में से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। शॉर्ट में से कैसे करेंगे डायरेक्टली, तो इसका पहले चार्ज निकालने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये करने का ज़रूरत नहीं, जो दिखाया मैंने डायरेक्टली दिमाग में कर सकते हो। और एक बार आपको चार्ज मिल गया, टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो टोटल चार्ज Q आपका कितना आया 120, और इनका पैरेलल लेने का 0.2, ये आपको दिखाने के लिए मैंने सब दिखाया। अभी शॉर्ट में दिखाता हूँ कैसे करने का। शॉर्ट में अब अगर देखो, मैंने अभी प्रॉब्लम रीड किया है, समझो। हाँ, 0.2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, पोटेंशियल है 600 वोल्ट, बाद में वो उसको कितने से कनेक्ट किया, 1 माइक्रोफेरेड से पैरेलल में किया, ओके। इसका चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, हाँ, तो 120 माइक्रोकूलम इसका चार्ज है। अब ये टोटल चार्ज है, ये हो गया Q टोटल। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, जो पैरेलल में लगाऊंगा तो 1.2, तो मेरे को C मिल गया, Q टोटल मिल गया, Q इज इक्वल टू सी वी, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, 120 अपॉन 1.2 हो गया 100, that is the voltage. Are you getting my point? Okay, so that was all about problem solving. Next video we will go for the next problem. This video length has increased, it's okay.